Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. We have already discussed some of the important topics for IBPS AFO mains. Today we will be discussing some of the important one-liners for IBPS AFO. Before I start with the lecture, I want to tell you that very less time is left for IBPS mains, so you need to be very serious and you need to consistently study for the exam. We have covered some of the important points, some of the important topics such as fisheries, sericulture, apiculture. The videos are already available in our playlist. If you want to study these sectors, you can go through the playlist and you can easily access view the videos. And if you like the channel, kindly do like, share and subscribe. With this, I would like to start with the today's topic, some of the important points related to general agriculture. Starting with the first point, that is Sabhagi Dhan, the new variety of rice. It is capable of withstanding drought. ठीक है, तो you need to remember Sabhagi Dhan is a new variety of rice that is capable of withstanding drought. Clear? Sabhagi Dhan you need to know. Water submergence variety of rice is Swarna Sub 1, can survive for 14 days under water. क्लियर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सहभागी धान एंड स्वर्णा सब वन. क्लियर. एज यू ऑल नो दैट वीट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू वीट स्टेम रस्ट. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि वीट स्टेम रस्ट किसके द्वारा होता है. विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्ट इन वीट. क्लियर. कितने टाइप का रस्ट होता है, अगर आपको ये भी पता है देन इट इज़ वेल एंड गुड. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. To ward off threat to wheat production from globally spreading menace of resistant varieties of wheat stem rust, wheat UG 99, DDW 17, PBW 550, LOC 1 and Turja is identified. Clear? You need to remember what are the wheat stem rust varieties, resistant varieties of wheat stem rust. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोटैटो. देखिए यहाँ पे ही आपको याद रखना है द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज़ सोलनम ट्यूबरोसम. और पोटैटो को मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में किसी एक नाम से भी जानते हैं. ठीक है, पुअर मैंस वॉट इट इज़ नोन, यू विल राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. क्लियर. तो in potato, the dry matter rich variety Kufri Frysona developed for making French fries. Clear? Which is the variety of potato that is developed for making French fries? French fries तो आपने खाया ही होगा. It is one of the most uh, loved food that by the youngsters. ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कौन सा वैरायटी जो है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं. इट इज़ कुफरी फ्राइसोना. Zinc solubilizing bacterial biofertilizer Azozinc developed to elevate zinc deficiency in the soil. ठीक है, zinc solubilizing bacterial biofertilizer. Biofertilizer क्या होता है? These are the biological inoculants, okay, that are used in order to increase the crop production. Clear? तो zinc solubilizing bacterial biofertilizer कौन सा है? It is Azozinc. Clear? Next, cloned and surviving buffalo calf Garima produced for faster multiplication of selected highly productive animal. Which is the cloned and surviving buffalo calf that is produced for faster multiplication of selected highly productive animals. It is Garima. आपको नाम याद रखना है. एक बार क्या होता है कि when you listen the things you remember that. कहीं ना कहीं अगर आपको सुना है आपने तो वो यूज़ हो जाता है. So the cloned and surviving buffalo calf is Garima. Azozinc याद रखना है. कुफरी फ्राइसोना you need to remember. Before that you should remember Sabhagi Dhan. All these things you need to remember. Moving on to the next, for blood flu diagnosis, high security animal disease laboratory. I think थोड़ा कट गया है.
भोपाल कन्फर्ड OIE इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ठीक है, फॉर ब्लड फ्लू डायग्नोसिस के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया गया। इट वॉज हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, इट इज़ इन भोपाल। Devised drip and sprinkler system saving 35 to 50%, labor 50%, fertilizer 30 to 40%, and increasing the yield 12 to 76%. Clear? लीफ कलर चार्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। लीफ कलर चार्ट इज़ यूज्ड फॉर नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए हम लोग मेनली लीफ कलर चार्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? लीफ कलर चार्ट इज़ मेनली यूज्ड फॉर nitrogen management. Leaf color chart, a simple device for nitrogen management. It will save 15k nitrogen per hectare in the rice. Tractor mounted cumene planters save 50% seed. Motorized aerial extractor developed for pomegranate. क्लियर? ट्रैक्टर लीफ कलर चार्ट जो है वो नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा। ट्रैक्टर माउंटेड क्लूमीन प्लांटर्स जो है वो 50% सीड सेव करेगा। मोटोराइज्ड एरल एक्सट्रैक्टर इज डेवलप्ड फॉर पोमीग्रेनेट। क्लियर? विद दिस वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। The first systemic work of SRI began at TNAU, Tamil Nadu in 1993. ठीक है, SRI का फुल फॉर्म क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था, आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द फर्स्ट सिस्टमिक वर्क ऑफ SRI बिगैन एट तमिलनाडु इन 1900। कहाँ कब स्टार्ट हुआ था SRI का पहला सिस्टमिक वर्क? इट वॉज स्टार्टेड बाई तमिलनाडु TNAU एग्रीकल्चर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1993। गोल्डन राइस से क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर द जीन्स हैव बीन टेकन। Golden rice is produced by combining genetic material from daffodil, Erwinia vridivora, Agrobacterium tumefaciens, and Japonica rice by Professor Ino Potricus and Peter Beer। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस जो है वो किन किन आपका क्रॉप्स का या फिर ऑर्गेनिज्म का आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। तो इट इज़ the combination of genetic material from daffodil, Agrobacterium tumefaciens and Japonica rice। ठीक है, किसने डेवलप किया था? तो प्रोफेसर इनगू प्रोट्रैकुस एंड डॉक्टर पीटर बेयर ने डेवलप किया था इन जर्मनी 1999। The purpose of golden rice is to provide a new alternative intervention to combat the vitamin A deficiency। विटामिन A deficiency जो पाया जाता है, हो जाता है, ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी को कॉम्बैक्ट करने के लिए गोल्डन राइस का डेवलपमेंट हुआ था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज़ इन दिल्ली, ये आपको पता होगा। NBB कहाँ है? दिल्ली में है। विच क्रॉप इज़ नोन एज कैमल क्रॉप? इट इज़ सॉर्गम। सॉर्गम को हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। विच of the following is known as natural genetic engineer? Then it is your Agrobacterium tumefaciens। पश्मीना wool winter cloth is obtained from। पश्मीना वुल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो अगर आपके पास ऑप्शन है वेदर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप या गोट, तो आपको याद रखना है पश्मीना वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ है? इट इज़ इन दिल्ली। गोल्डन राइस जो है वो किन के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है? देन इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे तो अच्छा होगा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ डैफोडिल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जिसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, एंड जापोनिका राइस। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? कल हमने बहुत सारे लॉज पढ़े। लॉ ऑफ मिनिमम मैंने आपको बताया था कल, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? लॉ ऑफ मिनिमम हमने आपको कल बताया था कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? यू नीड टू टेल मी। इट वॉज गिवन बाय जस्टिस वॉन लेबिग, JV जस्टिस वॉन लेबिग ने दिया था लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, फिर हमने मिशेलिक्स इक्वेशन में मिशेलिक लॉ किसने दिया? मिशेलिक ने 2 लॉ दिया था, मैंने आपको बताया था, मिशेलिक लॉ ऑफ फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप एंड मिशेलिक ग्रोथ लॉ।
लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? शेफोर्ड ने दिया था। ओलेरासिन इज फाउंड इन चिली। क्लियर। सैफ्रॉन और केसर इज बिलोंग टू द फैमिली इरिडेसी। टू विच फैमिली डज सैफ्रॉन और आपका केसर बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली इरिडेसी। वर्ल्ड फूड प्राइज 2007, Phillips Nelson. World Food Prize 2008 was received by R. Dhole and George M.C. Govan. Mycorrhiza increases the availability of phosphorus. What is mycorrhizal association? Association of fungi with the roots of higher plant. इसमें फिर दो होता है, endomycorrhiza and ectomycorrhiza, जो आप पढ़ेंगे आगे। माइकोराइजा इंक्रीज करेगा किसकी अवेलेबिलिटी? तो वो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। इसके पहले हमने पढ़ा था एजोजिंक। एजोजिंक क्या था? इट वॉज जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया था वो, ठीक है। इट वॉज अ जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज water requirement of irrigated wetland rice is 1500 millimeter. Water requirement of irrigated wetland rice कितना है? It is 1500 millimeter है। Nutrient mobility concept किसने दिया था? It was given by Bray. Bray ने nutrient mobility concept दिया था। PUFA content is highest in sunflower, helianthus, anise. Pseudo cereal किसे कहते हैं हम? It is known, buckwheat is known as pseudo cereal. फर्स्ट एग्रीकल्चरल केमिस्ट ऑफ ICAR JW लेदर, ठीक है। फादर ऑफ, इनको और भी किसी नाम से जानते हैं, फादर ऑफ किसके नाम से जानते हैं बताइए? फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? फादर ऑफ सॉइल साइंस इन द वर्ल्ड इज डॉक्यूचेव। फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया कौन है? लेदर। फर्स्ट एग्रीकल्चरल केमिस्ट ऑफ ICAR वॉज JW लेदर। सूडो सीरियल हम बकवीट को कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ बकवीट। बकवीट का फैमिली, किस फैमिली को बकवीट बिलोंग करता है, आप लिखकर बताएंगे। पल्स क्रॉप डज नॉट, अगर ना आए तो तब भी बताएंगे बिकॉज आई विल प्रोवाइड द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। कौन सा पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है? इट इज़ राजमा। राजमा क्रॉप डज नॉट, राजमा इज अ पल्स क्रॉप दैट डज नॉट फिक्स द नाइट्रोजन। सो in the next class we'll start with a new topic. Till today we will finish off our session over here. If you like the video, if you found it informative, kindly do like, share and subscribe. Meet you again in the next video. Till then, stay tuned. Thank you.